ये पूरी तरह से दिखाता है कि ये इंडेक्स ना केवल हायर रिटर्न दे रहा है बट विथ लोअर रिस्क दे रहा है। कंसर्न क्या था? अगर हम 10 साल में देख रहे हैं कि बीएससी एसएमई ने 60% सीएजीआर का रिटर्न दिया, एनएससी एसएमई इमर्ज इंडेक्स पिछले 5 साल में 53% का रिटर्न दे रहा है, तो क्यों आज एसएमई सेगमेंट लाइमलाइट में आ रहा है अमंग द इन्वेस्टर, उससे पहले क्यों नहीं आ रहा था? With me, I have Mr. Ankush Jain. So let me first introduce myself. So my name is Vikas. I'm the founder of AIF and PMS Experts India. We run this platform called AIFPMS.com, and we are now emerging as one of the largest platform for investing in alternate investments and portfolio management services. Now, what we are witnessing is good amount of innovations taking place in alternate space. Good number of products are coming up. Another thing which we saw is the SME segment, which is shaping up well in India. तो SME में आज का जो ये सेशन है बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स, हम इसे हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में इसे रिकॉर्ड करेंगे. सो सबसे पहले मेरे साथ में अंकुश जैन जी. सो अंकुश जैन जी फंड मैनेजर, ही इज द डायरेक्टर एंड फंड मैनेजर चाणक्य फंड में. सो अंकुश जी, thank you so much for taking the time out from your busy schedule and agreed to speak to all our investors. Thank you so much, Vikas ji, for inviting me for this event. It's always great to chat with you, and the kind of platform you are actually providing to your set of investors, given up very insightful information about the AIF industries, how the AIFs works, and how this set of investors who want to be participate in SMEs growth can more benefited. So Right. ये पूरा टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर अपने डिस्कशंस करेंगे. And also I want to be add कि how this set of investors can identify a good SMEs companies. राइट राइट. तो आज का आपका जो सेशन है ये मोस्ट डिमांडेड सेशन था इन्वेस्टर्स की तरफ से, इसीलिए सबकी रिक्वेस्ट आई है कि इसे आप हिंदी में रिकॉर्ड करें. तो अंकुश जी, आर कंफर्टेबल विद स्पीकिंग इन हिंदी? Yeah, I'll speak in Hindi, English both. So I hope it is done. या Yeah. हिंदी इंग्लिश, यस. तो मेरे को लेट मी हैव द प्रिविलेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अंकुश जैन हियर. तो जैसा मैंने बोला, अंकुश जी फंड मैनेजर की तरह एक काम कर रहे हैं चाणक्य फंड में. चाणक्य फंड की अगर हिस्ट्री देखें तो एक्चुअल में हिस्ट्री उनकी 1991 1992 से है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. अभी एसएमई सेगमेंट में पिछले 5 सालों से हमने बहुत बदलाव देखा. तो अंकुश जी ने ज्वाइन किया, ही इज अ सीएफए एंड इक्फाई मेंबर. इनका जो तजुर्बा है इस मार्केट में, वो 22 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं. टोटल 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है उनका. और इन्होंने पहले और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रोल में मतलब वर्क किया है. जैसे एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट में इन्होंने जॉब की है, जहाँ पे ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ शेपिंग अप द इंटायर investment team and their investment capabilities. Ankush brings expertise in structured product also, AIF, commodities as well as currency. करेंसी को समझना अपने आप में एक अलग अनुभव चाहिए होता है जिसमें वो पारंगत हैं. He understands both fundamental and technical and also understand derivative strategies position, which is very very important. And he is also supporting the step trade share services, which is part of the Chanakya. तो अंकुश जी, अभी आपका कोई प्रेजेंटेशन रन करेंगे या फिर आप विल हैव अ डिस्कशन, कैसा करेंगे? So very brief presentation I have made it. So it is already attached here. So if you allow your team to. Sure. So Manvi just put up the presentation. Okay. So we have 15 minutes for the presentation. अंकुश जी कोशिश करेगा अगर हिंदी में और प्लस इंग्लिश में आप मिक्स करके करें, और उसके बाद में हम इसका Q&A करेंगे. So I'll summarize 15 minutes में मुझे presentation देना है, and the 15 minutes will take a Q&A session, correct? Yes. Yeah. Thank you. So thank you so much, Vikas ji, and it is first of all good afternoon everyone, and I express my sincere gratitude to the AIF and PMS team for inviting me this event, which I believe it's a very educative event for the AIF industry, and also जो investors SMEs में investments plan करने के लिए कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे through this event. AIF इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, पिछले 5 साल में 38% के पेस पे ग्रोथ हुआ है. आज अगर AUM देखेंगे 8.35 लाख करोड़ का AIF इंडस्ट्री का AUM हो चुका है. वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सेगमेंट है
ये सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए क्यों ये लुक्रेटिव हो रहा है, इस पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एसएमई स्पेस पे ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसएमई ग्रोथ की बात करते हैं, सो एआईएफ रूट के थ्रू क्या होता है, ये जो एसएमई कंपनीज के अंदर जो पार्टिसिपेशन है विच इज अवेलेबल एट द इशू प्राइस, ये अपॉर्चुनिटीज आपको एआईएफ रूट्स के थ्रू मिल जाता है। सेकेंड, बिलो द इशू प्राइस ऑल्सो वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, जहां पे हम लोग प्री आईपीओ राउंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। स्टेप्टेड ऑर्गेनाइजेशंस दो एआईएफ फंड्स में डील कर रहा है, वन इज चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड एंड सेकेंड इज स्टेप्टेड रिवॉल्यूशन फंड। मेरा जो कैटेगरी 2 फंड है चाणक्य, वहां पे हम लोग 51% जो पोजीशंस लेते हैं वो प्री आईपीओ राउंड्स में रहते हैं, एंड द रिमेनिंग 49% इनटू द एसएमईज एंड माइक्रो कैप कंपनी एज ए क्यूआईबी एंड माइक्रो कैप स्पेस। वी हैव आल्सो अनदर कैटेगरी 3 ओपन एंडेड फंड, जहां पे 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यूआईबी और एसएमई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में रहता है। अब समझने वाली बात यह है कि एसएमई, हम लोग एसएमईज को समझने के लिए सबसे पहले एसएमई इंडेक्स के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। सो आप ये स्लाइड पे देख रहे हैं, बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स हैज जनरेटेड 60% सीएजीआर रिटर्न इन लास्ट 10 इयर्स। जब हम कंपेयर करते हैं ये इंडेक्स को मेन बोर्ड आईपीओ इंडेक्स के साथ, तो मेन बोर्ड आईपीओ इंडेक्स हैज जनरेटेड 22% सीएजीआर रिटर्न्स, और निफ्टी 50 ने यही टाइम पीरियड में 11% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, विच शोज वेरी क्लियरली कि ये इंडेक्स में 49% का अल्फा है इफ यू आर कंपेयरिंग विद द निफ्टी 50। एंड हम मेन बोर्ड कंपनियों के साथ कंपेयर करते हैं तो दैट अल्फा इज अबाउट 38%। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस पॉइंट में आप देखेंगे चार्ट के अंदर, 2020 तक मेन बोर्ड आईपीओ इंडेक्स और एसएमई आईपीओ इंडेक्स दोनों ने सिमिलर पेस ऑफ रिटर्न्स दिए हैं, जहां पे हार्डली 2-3% का अल्फा होगा। बट 2020 के बाद से ये जो गैप है बहुत तेजी से बढ़ा है और आज 38% का अल्फा हो गया है दोनों इंडेक्स के बीच में। ये इतना बड़ा अल्फा क्यों है वो समझना बहुत जरूरी है, और उसे समझने के लिए हमारे को जो एसएमई ग्रोथ है उसको दो फेज में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला है प्री कोविड फेज, दूसरा है पोस्ट कोविड फेज। सो नॉर्मली क्या होता है, जब प्री कोविड फेज की हम बात करते हैं तो प्री कोविड फेज में ये जो कंपनियां हैं को जो है मतलब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट से, जो उनको पोस्ट कोविड टाइम में मिलना चालू हो गया। प्री कोविड फेज के अंदर ये कंपनियां बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को लोकल सिटी और लोकल स्टेट्स तक ही प्रमोट कर रही थी, उसके बियॉन्ड इन्होंने सोचा नहीं कभी, बिकॉज दे हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज ऑल्सो। बट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स व्हेन दे हैव स्टार्ट प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो उनको पता चला इनका जो प्रोडक्ट बास्केट है वो सिर्फ लोकल सिटी और लोकल स्टेट्स नहीं है, पैन इंडिया अवेलेबल है, और कुछ प्रोडक्ट्स के केसेस में वर्ल्ड वाइड भी इनका मार्केट ओपन हो गया, जिसकी वजह से इनकी टॉप लाइन इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, और टॉप लाइन जैसे जैसे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ इनके बॉटम लाइन इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। और यही मेजर वजह है कि हमने पोस्ट कोविड फेज के अंदर इन कंपनियों में इस तरह का एक मेजर ग्रोथ देखने को मिला। सेकेंड, ड्यूरिंग द कोविड टाइम जब इंडिया चाइना बॉर्डर पर डिस्प्यूट हुआ और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, दे हैव स्टार्टेड आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन मोदी जी बहुत अच्छे से समझते थे, अगर इस कैंपेन को उन्हें सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें एसएमई कंपनियों को सबसे पहले सपोर्ट कराना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज ये जो एसएमई कंपनीज है ये 40% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन जीडीपी के अंदर, और जब तक ये कंपनियों को सपोर्ट नहीं मिलेगा टू मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल, इट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड, मोदी जी ऑल्सो have set their target that time 5 trillion economic target for India, now it is revised to 10 trillion economic target। उन्हें वो भी समझ में आता था कि अगर मुझे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव करना है तो ये सपोर्ट इन्हें देना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन वी हैव फाउंड कि पोस्ट कोविड फेज में इन कंपनियों के लिए इजी फाइनेंसिंग पॉलिसियां आनी चालू हो गई, जहां से इनको बहुत इजी वे में फाइनेंस मिलना स्टार्ट हो गया, जो प्री कोविड में नहीं हो रहा था। पोस्ट कोविड फेज में ये फाइनेंसिंग की वजह, बिकॉज ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनकी स्टार्ट हो गई स्ट्रांग होना, जिसकी वजह से भी हमारे को ग्रोथ देखने को मिला। जहां वी अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आज बिजनेस को बढ़ाना है तो बिजनेस को बढ़ाना है तो हमारे को क्या कहते हैं पैसे की जरूरत पड़ती है, और जब वो पैसा मिलना चालू हो गया, ऑर्डर बुक उनके हाथ में आ गई, सो दे हैव स्टार्ट ग्रोइंग देयर बिजनेसेस। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑनलाइन शॉपिंग का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, क्योंकि लोगों को बैठे बैठे शॉपिंग करने था, नाउ इट इज एन हैबिट। तो एज पर द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, इंडिया में 2014 में ई कॉमर्स जो मार्केट था वो $14 बिलियन का था, 2024 में वो $99 बिलियन का हो गया, 25 में इट इज एक्सपेक्टेड टू टच $188 बिलियन, बाय द एंड ऑफ 2030 there's an high there's expectation is it will touch to $350 बिलियन। अब जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट,
हम लोगों को जो प्रोडक्ट लिस्ट दिखता है ना, जो प्रोडक्ट बास्केट दिखता है, वो दिखता है छोटे छोटे वेंडर्स का। तो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जितना तेजी से स्ट्रांग हुआ है, इसका सीधा और सबसे पहला जो एडवांटेज है ये एसएमईज कंपनीज को मिला है, जिसकी वजह से भी हमारे को ये ग्रोथ देखने को मिला पोस्ट कोविड फेज के अंदर। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है, ये कंपनियों को क्या मिलना चालू हुआ जब ये कंपनियां एसएमईज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होना स्टार्ट हो गई। दिस कंपनीज कम्स इन अ लाइमलाइट अमंग द गवर्नमेंट प्लेयर्स एंड द प्राइवेट प्लेयर्स, जिसकी वजह से इन लोगों को सब ऑर्डर्स मिलने चालू हो गए इन बड़ी बड़ी कंपनियों से, और इसका सीधा सीधा फायदा इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दिखना चालू हुआ। और यही वजह है कि जब हम देखते हैं ना कि लिस्टिंग पे ये बहुत अच्छे लिस्टिंग डे गेन के साथ लिस्ट होते हैं, पी इनके बड़े हाई हो जाते हैं। बट क्या है, ये जो पी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब इनके टॉप लाइन बढ़ेंगे, बॉटम लाइन बढ़ेंगे, ये जो है इनके जो पी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट होकर के नीचे आ जाएंगे। इस पे आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल आल्सो, बट उससे पहले विल कम टू द अनदर इंडाइसेस ऑफ एनएससी एसएमई इमर्ज इंडेक्स। सो निफ्टी इंडाइसेस.com करके एक वेबसाइट पे, जहां पे एनएससी अपने हर इंडाइसेस का मंथली फैक्टशीट डालता है। जब हम उस फैक्टशीट को देखते हैं तो व्हाट वी हैव फाउंड 245 कंपनीज आर पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स। एंड जब हम चेक करते हैं कि ये इंडेक्स का रिटर्न क्या है, पिछले 5 साल का रिटर्न है 53% सीएजीआर रिटर्न्स। एंड व्हेन वी चेक द बीटा अगेंस्ट निफ्टी 50, इट इज जस्ट 0.28। ये पूरी तरह से दिखाता है कि ये इंडेक्स ना केवल हायर रिटर्न दे रहा है बट विद लोअर रिस्क दे रहा है। कंसर्न क्या था, अगर हम 10 साल में देख रहे हैं कि बीएससी एसएमई ने 60% सीएजीआर का रिटर्न दिया, एनएससी एसएमई इमर्ज इंडेक्स पिछले 5 साल में 53% का रिटर्न दे रहा है, तो क्यों आज एसएमई सेगमेंट लाइमलाइट में आ रहा है अमंग द इन्वेस्टर, उससे पहले क्यों नहीं आ रहा था? उसका सबसे बड़ा रीजन था लिक्विडिटी। 2018-19 में से 50 करोड़ का डेली वॉल्यूम होता था बीएससी एसएमई एंड एनएससी एसएमई इमर्ज ऑल कंपनीज। आज वो मार्केट वॉल्यूम बढ़ के हो गया 450 करोड़ का डेली बेसिस पे। ये दिखा रहा है कि जो पार्टिसिपेशन है ये सेगमेंट में हर जगह बढ़ रहा है। एंड यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये जो कंपनियां हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा वजह यही है क्योंकि ये जो पार्टिसिपेशन है, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो एसएमईज आईपीओ आ रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन 200 से 1000 गुना बढ़ गया। और वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब वो रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मुझे अलॉटमेंट लगेगा, सो दैट अलॉटमेंट पे मैं लिस्टिंग डे पे एग्जिट कर सकता हूँ। जो कॉन्फिडेंस पहले इन्वेस्टर्स के पास नहीं था प्री कोविड फेज के अंदर, लोगों को अलॉटमेंट मिलते थे, एग्जिट नहीं मिलता था। सेकेंड, क्यूआईबी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया है। 2012 से 2020 तक सिर्फ 12 कंपनियों में क्यूआईबी पार्टिसिपेशन था, बट 1 जनवरी 2021 से मिड ऑफ मई 2024 384 आईपीओस लिस्ट हुए हैं। उसमें से 140 कंपनीज में क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन रहा है। क्यूआईबी पार्टिसिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? व्हेन वी अप्लाइड एज अ क्यूआईबी, हमारे लिए important, we are not going to be exit with listing day gains. We have minimum 3 months of lock in, और until हमारे को वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी के प्रमोटर्स पे, we will not to be participated as an anchor investor because we are not going to be entered for listing day gain. We are investing for a longer growth of the companies. सो जब हम ये देखते हैं कि 140 कंपनियों में क्यूआईबी पार्टिसिपेशन हुआ है, वो 140 कंपनियों का जब मैं परफॉर्मेंस एनालाइज करता हूँ, व्हाट वी हैव फाउंड 25% कंपनियों ने लिस्टिंग डे पे ही 100% का रिटर्न दिया है। और जब हम ये कंपनियों को 1 साल या उससे ज्यादा से समय के लिए होल्ड रखते हैं, 51% कंपनियां 100% एंड अबव रिटर्न जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ये पूरी तरह से दिखाता है कि जो इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि एसएमए सिर्फ लिस्टिंग गेन का ही गेम है, ऐसा नहीं है। एसएमई इससे बहुत आगे का गेम है, एंड दैट्स द रीजन अब हमारे को ग्रोथ दिखना चालू हो गया एसएमई कंपनी के अंदर। और यही वजह है कि आप देखिए लास्ट ईयर मॉर्गन स्टैनलेज ने हैव इन्वेस्टेड इन 5 एसएमईज आईपीओस। अगर ये साल भी देखेंगे, एचडीएफसी बैंक हैव पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द एसएमईज आईपीओ एज एन एंकर इन्वेस्टर। ये दिखा रहा है कि किस तरह से एसएमईज जो है वो लाइमलाइट में आ रहा है अक्रॉस ऑल द प्लेयर्स। अब आता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया। अगर एक इन्वेस्टर्स को आज एसएमई कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना है,
तो वो क्या बेसिस पे इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन करे। बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहला जो क्राइटेरिया है जहां पे आपको एसएमईज कंपनी आइडेंटिफाई करनी है, the first criteria is to check the consistent profitability, last 3 years profitability of this setup of companies. Also try to find out what kind of order book they have in their hand, क्योंकि जिस तरह की ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक उनके हाथ में होगी उससे आपको आइडिया होगा इनका टॉप लाइन बढ़ेगा, बॉटम लाइन इंक्रीज होगा। एग्जांपल के मैं आपको तौर पे बताता हूँ, एक एक्स कंपनी है, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम। सो लास्ट 10 महीने पहले द आईपीओ आया 130 को, उनका जो टॉप लाइन था बिफोर द आईपीओ गेट लिस्टेड 130 करोड़। विद इन 2 months ऑफ द टाइम उनके पास एक झारखंड गवर्नमेंट से 135 करोड़ का ऑर्डर आ गया। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो 350 के पी पे ट्रेड कर रहा था, बट जब 24 के नंबर रिलीज किए उनका टॉप लाइन 130 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़ हो गया, बॉटम लाइन 11 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हो गया। एंड इन ऑन द सेम डे द 24 नंबर रिलीज द पी विल कम डाउन फ्रॉम 350 टू 65। सो ये एक एडवांटेज होता है टू आइडेंटिफाई कि मैं जिस कंपनी में डाल रहा हूं भले वो अभी हायर हायर वैल्यूएशंस में है, बट वो हायर वैल्यूएशंस के बावजूद भी देयर इज एन हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो कंपनियां हैं जब इतना हाई 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 बिजनेस ग्रोथ पे बैठी हुई हैं, तो जब इनके नेक्स्ट ईयर्स के नंबर्स आएंगे पी वेल ऑटोमेटिकली गेट सब्जेक्ट कम टू देयर ओरिजिनल वैल्यूएशंस। इस कंपनी की अगर मैं बात करूंगा, ये फाइनेंशियल ईयर का प्रोजेक्शन है कि वो 800 करोड़ के टॉप लाइन पे रहेंगे और 100 करोड़ के बॉटम लाइन पे रहेंगे। अगर यहां से भी वैल्यूएशंस डबल हो जाते हैं, मैं बोलता हूं कि लेट अज्यूम द वैल्यूएशन विल गेट डबल फ्रॉम हियर आल्सो, बट द डे द 25 नंबर रिलीज ऑटोमेटिकली द पी विल कम डाउन टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेवल्स। सेकेंड, कौन सी कंपनियां हैं जहां पे हमारे को देखने की जरूरत है कि हमारे को क्यूआई पार्टिसिपेंट ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉइंट, जहां पे क्यूआईबी पार्टिसिपेशन हो रहा है, ऐसी कंपनियों को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलता जहां क्यूआईबी पार्टिसिपेशन वो सारी कंपनियां खराब हैं, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर अगर ऐसी कंपनियों की तरफ जा रहे हैं जहां क्यूआईबी पार्टिसिपेशन नहीं है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वो कंपनियों का प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि सिर्फ 2 कंपनियां शायद अच्छा रिटर्न देंगी, 8 नहीं देंगी। बट जिन कंपनियों में क्यूआईबी पार्टिसिपेशन है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 6 या 7 कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं इवन पोस्ट लिस्टिंग, जबकि 3 या 4 कंपनियां बना के ना दे। तीसरा जो पॉइंट है टू आइडेंटिफाई कि हमारे को किस तरह की कंपनियों में पैसा डालना चाहिए, ऑलवेज चेक प्रमोटर का स्किन इन द गेम है कि नहीं है। अगर प्रमोटर का होल्डिंग 50% एंड अबव है, हमें ऐसी कंपनियों में ही पार्टिसिपेशन करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर 50% से नीचे का पार्टिसिपेशन है, इन्वेस्टर्स का, प्रमोटर का होल्डिंग है, तो ऐसी कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए एसएमई स्पेस के अंदर। ऑल्सो चेक कि कैश फ्लो ऐसी कंपनियों का कैसा है। ऑलवेज ट्रैक पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनीज ओनली। जहां कंपनियों के नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, ऐसी कंपनियों को भी इग्नोर करने का सजेशन रहता है हमारा एसएमई स्पेस के अंदर। सो मोटा मोटी आप देखेंगे ये जो 4 मेजर क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये फाइंड करते हैं कि, और वी सजेस्ट टू इन्वेस्टर्स कि किस तरह की एसएमई कंपनियों के अंदर पैसा डालना चाहिए जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको एक अच्छा रिटर्न बना सकती है, विथ सब्जेक्ट टू एडजस्टेड पी, कि हाँ उनके वैल्यूएशंस भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट क्या कहते हैं सेटल्ड हो जाए मार्केट के प्रॉपर वैल्यूएशंस के साथ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड विकास जी। नाउ आई एम हैप्पी टू Q&A सेशन फ्रॉम योर साइड। एक ही क्वेश्चन है मेरा इसमें अंकुश जी की, बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन इज कि देयर इज दिस परसेप्शन, मतलब एक लोगों का ये सोचना है कि एसएमई में काफी वैल्यूएशंस बढ़े हुए हैं और इस समय ठीक नहीं है इन्वेस्ट करने का इसमें, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? सो जैसे मैं आपको बताया था, निफ्टी इंडाइसेस.com पे जब हम एनएससी एसएमई इमर्ज इंडेक्स का फैक्ट शीट देखते हैं, 245 कंपनीज आर पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स, और उसका जो अभी जो पी है वो पी है 82 का। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब हम एसएमई कंपनी को ट्रैक करते हैं ना, तो उनका ऑर्डर बुक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर बुक से आपको ये आइडिया आएगा कि उनका टॉप लाइन क्या लेवल पे इंक्रीज हो सकता है और बॉटम लाइन क्या लेवल पे, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है, इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक हमारे को सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है। हमारे को ऐसा नहीं है कि बहुत स्मॉल क्या कहते हैं ग्रोथ देखने को मिलते हैं लाइक लार्ज कैप कंपनीज। तो इनके जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, 350 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही थी 23 के नंबर पे, अभी क्या हुआ कि उनका जो टॉप लाइन है 130 करोड़ से बढ़ के हो गया 384 करोड़ का, बॉटम लाइन 11 करोड़ से 50 करोड़ का हो गया।
तो जो मल्टीप्लायर है वो 350 से सीधा 65 पर आ गया। एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज सेड कि आपको एसएमई में ऐसी कंपनियों को ट्रैक करना है जिनके पास हैंडी ऑर्डर बुक्स हैं, जिनके जो कस्टमर बेस हैं दे आर अ गवर्नमेंट प्लेयर्स और गुड प्राइवेट प्लेयर्स। क्योंकि आज इन कंपनियों को सबसे ज्यादा जो सब ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो इन्हीं प्लेयर से मिल रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए बिजनेस फ्लो इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है और कंपनियां अपने लेवल पे सारे ऑर्डर्स को अचीव नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए ये इन कंपनियों को सब ऑर्डर देना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे इनकी टॉप लाइन बढ़नी स्टार्ट हो गई है और एक सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टॉप लाइन भी बढ़ रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा अगले 4-5 साल? तो इसका जवाब है बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज नाउ वी हैव ऑलरेडी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी रिवाइज देयर टारगेट टू द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है। अब जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंपनियों को ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट इन्होंने पोस्ट कोविड फेज में दिया है इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे टू अचीव एनी ऑफ दिस टू टारगेट्स और इवन द मेक दिस आत्मनिर्भर भारत कैंपेन मोर सक्सेसफुल, जब तक ये फाइनेंशियल ये जो पॉलिसी ईज ऑफ पॉलिसी जो इन्होंने दिया है पोस्ट कोविड फेज के बाद वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो ये जो नंबर्स हैं और ये जो टारगेट है इट इज नॉट अचीवेबल। तो आप ये मान के चलें अगर आज हमारे को 10 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स के नंबर पे जाना है तो ये उसको अचीव करने में सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो ये एसएमई कंपनी का रहेगा। एंड दैट्स द रीजन आई सेड कि अगले 4-5 साल भी ये एसएमई कंपनियां इसी पेस पे काम करेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे को सिर्फ वो कंपनी आइडेंटिफाई करनी है जिनके पास एक्चुअल में हैंडी ऑर्डर बुक हाथ में है, जिनके पास पोटेंशियल है कि वो अपने आप अपने बिजनेस को x से 4x 5x तक लेके जा सकें। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट अंकुश जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छी इनसाइट्स थे, आपने एसएमईज के बारे में बहुत अच्छी राय दी। और अभी तो मेरे ख्याल से ये कहता हूँ कि मैं ये बिगनिंग है, अभी तो ऐसा आने वाले समय में कम से कम 1500-2000 कंपनीज जो है आने वाले समय में लिस्ट होंगी और वो कंपनीज ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं सेगमेंट में। तो बहुत स्पेस में विकास जी 10 लाख कंपनियां हैं। आप ये मान के चलिए 10 लाख कंपनियों में से मैं बोलता हूँ सिर्फ 50,000 कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। 2012 से अभी तक सिर्फ 1000 कंपनियां हैं जो एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई हैं। आप ये पोटेंशियल समझें कि 49,000 कंपनीज का पोटेंशियल है टू गेट लिस्टेड ऑन द एसएमई प्लेटफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये पोटेंशियल आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा। आज जो हम 450 करोड़ का डेली मार्केट वॉल्यूम देख रहे हैं विद जस्ट 400 और 500 कंपनीज, वी हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी कि 2 साल बाद यही मार्केट 1000 से 1500 करोड़ का डेली बेसिस पे होना चालू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा लिस्टिंग आज आप देख लीजिए आईपीओ में, अगर हम 2023 में बात करेंगे 184 आईपीओ लिस्ट हुए, 184 कंपनियां लिस्ट हुई एसएमई प्लेटफॉर्म पर। ये साल हमारा प्रोजेक्शन है 250 प्लस कंपनियां लिस्ट होंगी और ये नंबर हर साल बढ़ने हैं क्योंकि हर कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स इंक्रीज हो रही है। और सिर्फ आप समझे कि आज आईपीओ प्राइमरी राउंड रेज करके वो पैसा क्यों रेज कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक इतनी हैंडी है कि अगर वो पैसा रेज नहीं करेंगे तो ये ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो जब हम इन कंपनियों में पैसा डालते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंपनियों में पैसा ये जो पैसा रेज कर रहे हैं इसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन वो कहाँ करने वाले। ठीक बात। So with that, we'll conclude our session here. Ankush ji, thank you so much for taking the time out and joining this. Truly appreciate your efforts. Thank you so much, Vikas ji. Thanks a lot for inviting me. Thank you.